PPT is visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, I'm going to start. So today we will discuss the model given by Kravis, which is theory of availability. उपलब्धता का सिद्धांत भी इसे हिंदी में बोलते हैं। I.B. Kravis in the year 1956, who was an American economist, questioned the assumptions of the classical theory that technology was the same in all trading countries. As we know, the classical theory was based on the assumption that technology, which is used in all the countries, is supposed to be the same. While testing the HO theory, he wanted to find out whether labor-intensive exports were produced by cheap labor. In his Sorry to analysis, interrupt, ma'am. Ma'am, have you changed your first slide? theory of availability given by Kravis. While testing the HO theory, he wanted to find out whether labor-intensive exports were produced by the cheap labor. While testing that whether the exports which are labor intensive are produced by cheap labor, he tried to trace that कि वो कंट्री जो कि लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रही थी, क्या ऐसे प्रोडक्ट्स जो थे वो चीप लेबर से प्रोड्यूस किए जा रहे थे। But he found in almost every country the exporting industries paid a very high wages to the laborers. लेकिन उन्होंने पाया क्या, उन्होंने उनकी स्टडी से ये निकल के आया कि those countries which were exporting labor intensive products were producing the products at very high wages. According to him, a country produces and exports those goods which it had available. क्रेविस का मानना था कि कोई भी देश ऐसी वस्तु का प्रोडक्शन करता है, एक्सपोर्ट करता है, जिसकी कि उसके पास में प्रॉपर अवेलेबिलिटी होती है, विच इज अवेलेबल टू इट विद इन इनफ क्वांटिटी. दैट इज द गुड्स डेवलप्ड बाय its innovator and entrepreneurs. Thus, Kravis propounded the Ma'am, theory sorry to that, interrupt. yeah, Excuse me, ma'am. yeah, Ma'am, we cannot see your changed slide. Have you changed your slide? no, We are still on the first slide. it's showing first slide. Yeah. No, ma'am. No, ma'am. Second slide is clearly visible to us. Second It's the slide. second slide is visible to you or first slide? Ma'am, first Second, slide. Uh, ma'am. to me, it's Ma'am, first. second slide is clearly visible You, to us. who is this? Ma'am, Monali, I'll rejoin, ma'am. Ma'am, You have rejoined. Actually, that's why it may be the problem. Other students can No, see no, my screen. I'm there since the beginning. I don't know. I'll try to rejoin right now. I'm there since the beginning, but I don't know why the first slide is only visible to me. Only मैम first मुझे slide is visible, and for rest of the students, मैम मुझे भी फर्स्ट स्लाइड शो हो रहा है. Second slide, ma'am. मैम Slide सेकंड fully. सभी को सेकंड फर्स्ट स्लाइड स्लाइड ही दिख शो. रही है. No, No, ma'am. No, ma'am. because it's the first slide. To few of us, it's the second slide that's visible. Oh my God, what are the problems? It's a bit difficult to take online classes. Yes, ma'am. Again, I will share the things. Let's see. Yes. Ma'am, yes, ma'am, it's second slide now. Taken? No, it's first again.
Yeah, You I go down. first slide. That's why it is first slide. Excuse me. Now it is first slide Yes, Yes, ma'am. and it is Next second slide, ma'am. slide. Is it visible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Visible now. Yes, ma'am. yes, ma'am. Okay. So Thank shall you, I ma'am. explain the things again, or whatever I have explained, have you heard that? The explanation is clear, ma'am. Thank you. Thus, the Kravis propounded the theory that the composition of commodity of trade is determined primarily by availability, which means an elastic supply. So, Kravis has propounded his theory on the basis of availability of commodity. He said that composition of trade will depend on the availability of goods, and for that supply should be elastic. मतलब वस्तुओं की उपलब्धता के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कंपोजिशन ऑफ ट्रेड क्या होगा। यदि प्रॉपर कमोडिटी या अधिक मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध होती हैं तो ट्रेड भी अधिक होगा, यदि कम मात्रा में वस्तुएं उपलब्ध होती हैं तो कम ट्रेड होता है। इसके लिए सप्लाई जो है दैट मस्ट बी इलास्टिक। Kravis therefore asserted that nations would export those products which were readily available in home country. क्रेविस ने ये भी असर्ट किया, स्टेट किया कि नेशंस जो है उन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं जो कि पूरी तरह से तैयार होते हैं, डोमेस्टिक कंट्री में पूरी तरह से तैयार होते हैं, एक्सपोर्ट करने के लिए उन्हीं प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। They would tend to import on the contrary such products, the domestic supply of which had been short of their demand. और कंट्री केवल उन्हीं प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करती है, आयात करती है जिन वस्तुओं की देश में उपलब्धता नहीं होती है या जिन वस्तुओं की सप्लाई बहुत कम होती है। यदि प्रॉपर सप्लाई होती है तो इसका मतलब है कुछ वस्तुओं का एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है, लेकिन यदि सप्लाई शॉर्ट होता है कुछ वस्तुओं का तो ऐसी वस्तुओं का इंपोर्ट भी किया जाता है। According to him, the essential basis of international trade has been the non-availability of goods at home. इनका क्या मानना था? इनका ये मानना था कि इंटरनेशनल ट्रेड का जो बेसिस है या आधार है वो होता है वस्तुओं की अनुपलब्धता ही जो है इंटरनेशनल ट्रेड का आधार है। बिकॉज द गुड्स आर नॉट अवेलेबल इन पर्टिकुलर कंट्री, दैट्स व्हाई इट एंटर्स इन द ट्रेड एंड imports goods. The non-availability of goods in some country may either be in absolute or relative sense. If we talk about the unavailability of goods, it may be in two forms, in absolute form and in relative form. When we talk about absolute मतलब हो गया सापेक्ष रूप, निरपेक्ष रूप से वस्तुओं की अनुपलब्धता का होना और सापेक्ष रूप से वस्तुओं की अनुपलब्धता का होना या उपलब्ध न होना। In the former case, in case of absolute non-availability of goods, certain goods may not be available at all in home country. What happens in that case? कि कुछ वस्तुएं देश में उपलब्ध नहीं हो सकती हैं, such as diamonds in US economy. इन्होंने एग्जाम्पल लिया था, यूएस इकोनॉमी का एग्जाम्पल लिया था कि जैसे हम बात करते हैं डायमंड की बात करते हैं तो डायमंड जो है यूएस इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं होता है। The non-availability in relative sense signifies that the domestic supply of product is short of their demand. यदि हम रिलेटिव सेंस की बात करते हैं, रिलेटिव सेंस में यदि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स की बात करते हैं तो इट रिफर्स टू डोमेस्टिक सप्लाई प्रोडक्ट शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड। डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स इज शॉर्ट ऑफ देयर डिमांड। डिमांड के अकॉर्डिंग वहां पे वस्तुओं की जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो नहीं हो पाती है। वस्तुएं तो उपलब्ध हैं लेकिन वो जो टोटल डिमांड है उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाती हैं, एंड द एडिशनल आउटपुट ऑफ दोज गुड्स कैन बी पॉसिबल
in the home country at much higher cost. यदि कंट्री चाहती है कि एडिशनल सप्लाई की जाए, वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ाया जाए, तो वस्तुओं की उपलब्धता को तभी बढ़ाया जा सकता है, अवेलेबिलिटी को तभी इंक्रीज किया जा सकता है when the goods are produced at higher cost. उनके उत्पादन की जो लागत होती है in that case increases. The principle of comparative advantage in such a case comes into its own and countries prefer to import such products. ऐसी दशा में क्या होता है, कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थियोरी दी गई है वो कुछ हद तक लागू होती है, एप्लीकेबल होती है, और कंट्रीज prefer to import such products when country finds that the production cost of additional supply is higher, then it goes for importing such product. जो भी एक्स्ट्रा जो डिमांड है उसको वो इंपोर्ट के थ्रू मीट आउट करने की कोशिश कंट्री करती है फ्रॉम अब्रॉड, रादर देन टू प्रोड्यूस देम एट होम एट प्रोहिबिटिव कॉस्ट. तो ऐसी दशा में क्या करेगा देश कि यदि उसे लगता है कि यदि सप्लाई बढ़ाने, यदि डिमांड को मीट करने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए यदि वो सप्लाई को इंक्रीज करता है तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज करेगी, तो देश तो जो एक्सेस डिमांड है उसका प्रोडक्शन कंट्री में नहीं किया जाएगा, बल्कि इन वस्तुओं का आयात अन्य देशों से कर लिया जाएगा ताकि जो इंक्रीज्ड कॉस्ट है उससे बचा जा सके. According to Kravis, domestic availability of certain specified products in a particular country is governed by. क्रेविस का मानना था कि जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी होती है कुछ वस्तुओं की, कुछ विशेष वस्तुओं की, वो कुछ बातों पर निर्भर करती है. पहला आता है, फर्स्ट वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन. इफ अ कंट्री इज वेल एंडाउड with minerals like iron, ore, bauxite and oil, the product which involve the use of such materials will be produced in large quantity in home country. यदि किसी देश में मिनरल्स एज आयरन, ओर, बॉक्साइट, ऑयल ये पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इनकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी होती है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग उस कंट्री में की जाएगी जिसमें इन मटेरियल्स को, इन मिनरल्स को ज्यादा यूज किया जाता है, और ऐसी वस्तुओं का प्रोडक्शन जो है होम कंट्री में लार्ज स्केल पर किया जाएगा. A part of production of these product will be exported abroad. जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होगा तो उसका कुछ अमाउंट जो है डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के बाद में बच जाएगा, जिसको कि एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा, फॉरेन कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा. On the opposite, if there is a scarcity of forest product in a given country, if we talk on the contrary of this, if there will be scarcity of forest products in a country, यदि किसी देश में वन उत्पादन पदार्थों की कमी होती है या उसकी उपलब्धता में कमी होती है, स्कार्सिटी होती है, तो ऐसी वस्तुओं का की जो डिमांड होती है उसको पूरा करने के लिए उन्हें अब्रॉड से इंपोर्ट कर लिया जाएगा. दूसरे देश उसका निर्माण कर रहे होंगे, वहां से इंपोर्ट कर लिया जाएगा. Thus the pattern of trade of a given country is influenced by the relative abundance or scarcity of natural resources. तो यहाँ पे जो बात की गई है, पैटर्न ऑफ ट्रेड की बात की गई है, ये कहा गया है कि वो डिपेंड करती है, ट्रेड पैटर्न जो है वो इन्फ्लुएंस होता है या गवर्न होता है रिलेटिव अबंडेंस, मतलब सापेक्षिक पर्याप्तता या संसाधनों की दुर्लभता से. ये दुर्लभता जिसको बोलते हैं स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब होता है प्राकृतिक संसाधनों की दुर्लभता. तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है ये दो बातों पर निर्भर करेगा कि संसाधन उस देश में पर्याप्त, सापेक्षिक रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है या फिर वहां पे सापेक्षिक रूप से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है या वहां पे दुर्लभ पाए जाते हैं. यदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं प्राकृतिक संसाधन
तो वो देश ऐसी वस्तुओं का निर्माण करेगा जिनके निर्माण के लिए उन प्राकृतिक संसाधनों का, नेचुरल रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करने की आवश्यकता है, और ऐसा करके वो एक्सेस प्रोडक्शन करेगा जो कि वो एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इसके अगेंस्ट यदि स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस होती है तो वो देश ऐसी वस्तुओं को आयातित कर लेगा, दूसरे विदेशों से मंगवा लेगा जिन संसाधनों की उस देश में अनुपलब्धता है या वहां पे स्कार्सिटी है। सेकेंड पॉइंट जो गवर्न करता है इंटरनेशनल ट्रेड पैटर्न को, दैट इज टेक्निकल प्रोग्रेस, तकनीकी प्रगति। The technical progress can have a significant impact upon factor utilization, factor cost, expansion in the scale of production, and improvement in the quality of product. क्रेविस कहते हैं कि टेक्निकल प्रोग्रेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है फैक्टर यूटिलाइजेशन के ऊपर, साधनों के उपयोग या उसकी उपादेयता के ऊपर, साधनों की लागत के ऊपर, और स्केल ऑफ प्रोडक्शन के एक्सपेंशन में, मतलब हम कहें पैमाने के, उत्पादन के पैमाने के विस्तार करने में या क्वालिटी को इम्प्रूव करने में टेक्निकल प्रोग्रेस बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत हद तक वो सहायक होती है या फिर उसको प्रभावित करती है। In general, technical progress can increase considerably the domestic availability of certain categories of product. सामान्यतः यदि कहा जाए तो टेक्निकल प्रोग्रेस काफी हद तक डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स को, सर्टेन कैटेगरी प्रोडक्ट्स को प्रभावित करती है। The surplus quantities of which can be exported abroad. यदि टेक्निकल प्रोग्रेस पर्याप्त मात्रा में है, सफिशिएंट है, तो in that case domestic supply will be available there will be enough supply of goods domestically, and excess commodities, excess quantities of these products can be exported to rest of the world. Product differentiation is third component which determines the trade pattern. The producer in different countries are inclined to produce different varieties of product. ये तो हम सभी जानते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो होमोजीनियस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, होमोजीनियस गुड्स नहीं बनाते हैं, बल्कि जो भी वस्तुएं बनाते हैं, जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, दैट इज डिफरेंशिएटेड टू सम एक्सटेंट. The production of such goods confers temporary monopoly to a specific innovating country. If they are producing differentiated product to some extent, this differentiated due to producing differentiated product, they are having some kind of monopoly power over their product, and it disposes of its special product variety in the foreign मार्केट. ऐसी दशा में वो क्या कर सकता है कि अपनी जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है उसको फॉरेन मार्केट में भी वो भेज सकता है या एक्सपोर्ट कर सकता है. आ रहा है समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Government policy. The tariff and non-tariff barriers tend to restrict the international flow of goods. As we all know that if government imposes tariff barrier or non-tariff barrier is quota. If non-tariff barrier are imposed by the government, they restrict the flow of goods, international flow of goods. The international cartels like OPEC to follow restrictive policy measures, and availability of a large range of products gets affected on the international plane. तो ओपेक आप जानते हैं कि it is a cartel of petroleum exporting countries. ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का ये कार्टेल है जिसके अंतर्गत एंट्री और एग्जिट बहुत मुश्किल होता है. तो ये भी रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी मेजर्स को फॉलो करता है जिसके कारण कि अवेलेबिलिटी ऑफ लार्ज प्रोडक्ट्स
लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अफेक्टेड ऑन द इंटरनेशनल प्लेन। इसके कारण जो होता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स अफेक्ट होती है, क्योंकि नए फॉर्म्स उसमें एंटर नहीं कर सकती हैं। बहुत ही इसके लिए कार्टेल के अंतर जो पॉलिसी होती है बहुत ही स्टिफ पॉलिसी है। While natural resources, technical progress and product differentiation altogether lead probably to expansion in the volume of international trade. यदि हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं, तकनीकी प्रगति की बात करते हैं, उत्पादन विभेदीकरण की बात करते हैं, तो ये तीनों आपस में मिल करके क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाते हैं, एक्सपैंड करते हैं। On the contrary, the trade restrictions imposed by the countries tend to have a limiting impact upon trade. लेकिन दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करते हैं, तो इनका इम्पैक्ट क्या आता है कि ये वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सीमित करते हैं। इनके थ्रू वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ता नहीं है, बल्कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत घट जाता है। क्रेविस ने अपनी अवेलेबिलिटी थियरी को, इंटरनेशनल ट्रेड के अंतर्गत अवेलेबिलिटी थियरी को हाइपोथेटिकल एग्जांपल के थ्रू इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ही हैज टेकन 4 कंट्रीज, सपोज दीज आर ए बी सी एंड डी। देयर आर 2 कमोडिटीज, व्हीट एंड स्टील। उन्होंने माना है कि 4 देश हैं, कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी एंड कंट्री डी, और जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, जो वस्तु ये बना रहे हैं, वो है व्हीट और स्टील। The production of both commodities requires labor and capital. ये भी माना है कि दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन के लिए दोनों ही संसाधनों की आवश्यकता होती है, चाहे वो लेबर हो या कैपिटल हो। Both are required for producing these 2 products. In addition, the production of wheat requires fertile agricultural land. यदि हम बात करते हैं व्हीट की बात करते हैं, व्हीट के प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी होता है? सबसे पहले व्हीट के प्रोडक्शन के लिए कंडीशन है कि देयर मस्ट बी फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड। उत्पादकीय कृषिगत भूमि होनी चाहिए। फर्टाइल नहीं है, इनफर्टाइल है, तो वहां पे एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जरूरी कंडीशन क्या है व्हीट के प्रोडक्शन के लिए कि लैंड मस्ट बी वेरी फर्टाइल, उपज वाली लैंड होनी चाहिए। वेयर इज द प्रोडक्शन ऑफ स्टील रिक्वायर्स आयरन एंड ओर। लेकिन दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं स्टील की बात करते हैं, तो स्टील के प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है? तो आयरन एंड ओर का होना जरूरी है। आउट ऑफ द 4 कंट्रीज, यदि हम माने यदि 4 देश हैं, 4 कंट्रीज हैं, जिसमें से यदि हम बात करते कंट्री ए, कंट्री बी और कंट्री सी की बात करते हैं, तो दीज 3 कंट्रीज आर एंडाउड विथ एग्रीकल्चरल लैंड। तो ये तीनों देश क्या हैं? इन तीनों ही देशों में प्रचुर मात्रा में एग्रीकल्चरल लैंड उपलब्ध है, कृषिगत भूमि यहाँ पे प्रॉपर मात्रा में अवेलेबल है। ऑन द कॉन्ट्री यदि हम बात करें बी, सी एंड डी की बात करें, तो क्या दिख रहा है कि बी, सी, डी में नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल है, वो कि आयरन Ma'am, I और can't ओर है। hear you. हेलो, क्या हुआ? Someone is saying something? Ma'am, सुनाई नहीं दे रहा voice. नहीं दे Your रहा voice is है? breaking, ma'am. मैंने तो लगाया हुआ है, मतलब ईयरफोन के थ्रू ही, मतलब माइक लगा के माउथ के पास ही पढ़ा रही हूँ। कब से नहीं सुनाई दे रहा है? 3-4 minutes, I guess. अरे सुनाई दे रहा है मैम, बीच बीच में ब्रेक हो रहा है। अच्छा, रुकिए मैं देखती हूँ। Maybe it's because of network problem. Hello, now it's clear. पहले से आवाज इम्प्रूव हुई? Yes, ma'am. आप लोग पहले ही बता दिए होते मुझे तो ज्यादा सही रहता है ना, मुझे लगा सुनाई दे रहा है प्रॉपर।
क्योंकि हम जान नहीं सकते, आई कैन नॉट सी योर एक्सप्रेशन वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग, वेदर यू आर लिसनिंग टू मी और नॉट, आई इट्स वे बिट डिफिकल्ट। सो यदि प्रॉब्लम हुआ करे तो पहले ही इंटरप्ट कर दिया करिए, क्योंकि मैं पढ़ाती जाऊँ कंटिन्यूटी में और आपको पता ही ना चले उसमें क्या हो रहा है, ठीक है। तो सुना पहले का समझ में आया कि मान लीजिए 4 कंट्रीज ये सुना था आपने? यस मैम। ओके Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं देयर आर फोर कंट्रीज, जिसमें से कि ए बी एंड सी आर एंडाउड विथ एग्रीकल्चर लैंड। म्यूट योर सेल्फ क्रिएटिंग प्रॉब्लम, आवाज आ रही है। म्यूट योर सेल्फ, किसी का माइक ऑन है, खड़खड़ाहट आ रही है। ए बी सी के पास में पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपजाऊ भूमि उपलब्ध है, एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं बी सी एंड डी की बात करते हैं, तो दीज आर हैविंग सफिशिएंट आयरन ओर। इन तीन देशों के पास में क्या है? पर्याप्त मात्रा में आयरन और ओर अवेलेबल है। गिवन दिस फैक्टर एंडाउमेंट्स, कंट्री ए कैन प्रोड्यूस, यहाँ पे आपको दिख रहा है कंट्री ए कैन प्रोड्यूस ओनली व्हीट। यदि कंट्री ए की बात करते हैं तो कंट्री ए केवल क्या उत्पादन कर सकता है? कंट्री ए केवल व्हीट का ही प्रोडक्शन कर सकता है, क्योंकि कंट्री ई यहाँ केवल पहले कैटेगरी में आ रहा है और दूसरी कैटेगरी जो आयरन ओर की उसमें नहीं आ रहा है। तो कंट्री ए कैन ओनली प्रोड्यूस व्हीट, वेयर एज कंट्री डी कैन प्रोड्यूस ओनली स्टील। लेकिन दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं डी कंट्री की बात करते हैं, तो डी कंट्री केवल स्टील का ही प्रोडक्शन कर सकता है। द कंट्रीज बी एंड सी कैन प्रोड्यूस बोथ व्हीट एंड स्टील। लेकिन हम बात करें कंट्री बी और सी की बात करें, क्योंकि कंट्री बी और सी के पास में पर्याप्त मात्रा में लैंड भी अवेलेबल है, एग्रीकल्चर लैंड भी अवेलेबल है, साथ ही साथ इनके पास पर्याप्त मात्रा में आयरन ओर भी अवेलेबल है, जिसके कारण ये दोनों ही देश, कंट्री बी और सी दोनों ही देश जो हैं व्हीट का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं, स्टील का भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी डॉक्ट्रिन, अवेलेबिलिटी सिद्धांत के अनुसार या उपलब्धता सिद्धांत के अनुसार, कंट्री ए विल एक्सपोर्ट व्हीट टू कंट्री डी। क्या करेगा? कंट्री ए बनाएगा, व्हीट का उत्पादन करेगा, क्योंकि इसके पास में सफिशिएंट एग्रीकल्चर लैंड अवेलेबल है। तो कंट्री ए जो है व्हीट का प्रोडक्शन करेगा और डी को एक्सपोर्ट करेगा। कंट्री डी जो है स्टील का प्रोडक्शन करेगा और कंट्री ए को स्टील एक्सपोर्ट करेगा। सिंस बी एंड सी आर केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग बोथ द कमोडिटीज, क्योंकि बी और सी कंट्री के पास में दोनों ही साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, चाहे वो कृषिगत भूमि हो या फिर आयरन ओर हो, दोनों ही साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, तो वो दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन कर सकता है। अब ट्रेड इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज उसे किस वस्तु के उत्पादन में ज्यादा मिल रही है, इस बात पर निर्भर करेगा। Suppose the domestic exchange ratio between wheat and steel in country B is 6 units of wheat is equal to 1 unit of steel. कंट्री बी में क्या दिख रहा है? रेशियो क्या है? वो सेम फैक्टर प्रोडक्शन लगा करके, साधनों को लगा करके 6 यूनिट्स ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन कर सकता है या फिर वो 1 यूनिट स्टील का प्रोडक्शन कर सकता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 6 यूनिट्स ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ स्टील। और यदि हम कंट्री सी की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 यूनिट्स ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन होता है इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ स्टील। सेम संसाधनों से या सेम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से वो 3 यूनिट्स ऑफ व्हीट का प्रोडक्शन चाहे तो करे या फिर 1 यूनिट ऑफ स्टील का प्रोडक्शन करे। यदि इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो, यदि अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर एक्सचेंज रेशियो जो है इट इज सेटल्ड डाउन एट 4 यूनिट्स ऑफ व्हीट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ स्टील, यदि वो सेटल डाउन हो जाती है कि 4 यूनिट व्हीट के बदले में 1 यूनिट ऑफ स्टील मिलेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? कंट्री बी आपका व्हीट एक्सपोर्ट करेगा कंट्री सी को और कंट्री सी एक्सपोर्ट करेगा स्टील कंट्री बी को एक्सपोर्ट करेगा। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. The availability approach has been discussed by R. Findlay in relation to factor proportions approach.
फिनले के द्वारा इस अप्रोच को डिस्कस किया गया था, साधन अनुपात सिद्धांत के रूप में इसको डिस्कस किया गया था. इट इज सपोज दैट टू कंट्रीज ए एंड बी कैन प्रोड्यूस टू कमोडिटीज, wheat and steel. They have equal endowment of labor, capital, iron ore. तो ये मान लिया गया है कि दो देश हैं, कंट्री ए और कंट्री बी हैं. दोनों ही देश जो हैं दो वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, व्हीट और स्टील का प्रोडक्शन कर सकते हैं. दे आर इक्वली एंडाउड इन केस ऑफ लेबर, कैपिटल, आयरन ओर. मतलब ये साधन इन दोनों ही देशों में इक्वली अवेलेबल हैं. हाउएवर कंट्री बी हैज मोर एग्रीकल्चरल लैंड. लेकिन दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल लैंड की बात करते हैं तो इट इज अवेलेबल इन अबंडेंस इन कंट्री ए. कंट्री ए में ये जो है सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है. नहीं, कंट्री बी में ये सफिशिएंट मात्रा में अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू कंट्री ए. कंट्री ए की तुलना में कंट्री बी में एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा अवेलेबल है. द पैटर्न ऑफ ट्रेड बिटवीन दीज टू कंट्रीज मे बी seen through this graph. Here we have shown is the production of steel on x-axis and production of wheat on y-axis, and given the equal availability of labor, capital, iron ore, these two countries are producing रिलेटिवली अ लार्ज अवेलेबिलिटी ऑफ वीट प्रोड्यूसिंग लैंड इन कंट्री बी. ये भी है यहाँ पे कि बी में जो है एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू कंट्री ए. जबकि कंट्री और यदि अन्य फैक्टर्स की बात करते हैं, लेबर, कैपिटल, आयरन ओर की बात करते हैं, तो ये दोनों ये साधन जो हैं दोनों ही देश में इक्वली अवेलेबल है. लेकिन एग्रीकल्चर लैंड की बात करते हैं तो इट इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस इन कंट्री बी. हियर AA1 इज द PPC ऑफ कंट्री ए. AA1 यहाँ पे ए देश का उत्पादन संभावना वक्र है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, PPC है ए कंट्री का. और A1B इज द PPC ऑफ कंट्री बी. P0 and P1 these are the terms of trade lines for these two countries A and B. यदि हम बात करते हैं P0 P1 की बात करते हैं तो ये दोनों देशों के लिए व्यापार की शर्त रेखाएं हैं, टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइंस हैं. Here line OR indicates 45-degree line OR indicates the demand proportions of two commodities in these countries. दोनों ही देशों में मांग के अनुपात को ये बता रही है, OR रेखा बताती है. OR इंटरसेक्ट्स AA1 एंड A1B. मतलब ये दोनों ही जो PPC कर्व्स हैं फॉर कंट्री ए एंड कंट्री बी. कंट्री ए का PPC हम जानते हैं AA1 है, कंट्री बी का PPC जो है A1B है. तो ये PPC कर्व को OR रेखा जो है इट इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट S1 और S पर ये इंटरसेक्ट कर रही है. जहां से ये गुजर रही है, PPC कर्व को टच करते हुए गुजर रही है. इन पॉइंट को हमें लेना है, तो PPC को कट करते हुए गुजर रही है. S ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन ये हम यहाँ पे जो डॉट है जहां पे ये आपका PPC कर्व को काटते हुए जा रही, इन्हीं पॉइंट्स को हम देख रहे हैं कि S1 पे काट रही है AA1 को और S पे काट रही है A1B को. पॉइंट S यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कंट्री बी में रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील इज OQ1. यदि हम बात करते हैं एक कंट्री S1 के, यदि पॉइंट पे सबसे पहले S1 को देखते हैं. पॉइंट S1 इंडिकेट करता है कि ए कंट्री में स्टील की रिक्वायरमेंट कितनी है. तो स्टील की रिक्वायरमेंट ए कंट्री में है S1 OQ. स्टील हमारा दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे स्टील दिया हुआ है, तो ए कंट्री में स्टील की रिक्वायरमेंट कितनी है, OQ यहाँ पे स्टील का की रिक्वायरमेंट है.
और यदि हम बात करते हैं वीट की रिक्वायरमेंट कितनी है यहाँ पे, तो वीट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है S1Q। वर्टिकल में हम जाएंगे तो हमें दिखता है कि वीट की रिक्वायरमेंट ए कंट्री में है S1Q, क्वांटिटी ऑफ वीट इज रिक्वायर्ड इन कंट्री ए, एंड OQ, क्वांटिटी ऑफ स्टील इज रिक्वायर्ड इन कंट्री ए। अब पॉइंट एस को देखते हैं, ऊपर जो है यहाँ पे है, जो कि पीपीसी को कट करते हुए OR रेखा जा रही, वहां पे आपका पॉइंट एस है। पॉइंट एस यहाँ पे इंडिकेट करता है कि कंट्री बी रिक्वायर्स OQ1 क्वांटिटी ऑफ स्टील। कंट्री वन को कितनी है, कंट्री बी को है OQ1 क्वांटिटी ऑफ स्टील इज रिक्वायर्ड बाय कंट्री बी, एंड SQ1 क्वांटिटी ऑफ वीट। वीट की रिक्वायरमेंट यहाँ पे S1Q है, वर्टिकल जो लाइन जा रही है S1Q यहाँ पे वीट की रिक्वायरमेंट है, और OQ1 यहाँ पे स्टील की रिक्वायरमेंट है। मैम, हाँ, जब बजट लाइन और आईसी कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें उसका कंसेप्ट पता है कि ऐसा क्यों होता है, किसी होता है। तो टीओटी लाइन और एक कंट्री की पीपीसी जब इंटरसेक्ट करती है, उसकी बेस कंसेप्ट क्या होती है? क्या इंटरसेक्ट करती है वो पूछ रहे हैं? टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन एंड पीपीसी जब इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो एक्चुअली डिपिक्ट क्या करता है? यहाँ पे यदि प्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरसेक्ट करने का तो एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो यहाँ पे डिमांड प्रपोर्शन को बताता है। इन देशों में डिमांड प्रपोर्शन को बता रहा है कि कितना यहाँ पे किस अनुपात में दोनों वस्तुओं की डिमांड की जा रही है, आपकी OR लाइन जो है इंडिकेट करती है। और यदि हम बात करें T और T1 की बात करते हैं तो ये यहाँ पे प्रोडक्शन पॉइंट को शो करते हैं, लेकिन यहाँ पे टच करने का जो पॉइंट है वहाँ पे ये आपका है कि डोमेस्टिक, यहाँ पे आपका पीपीसी जो टच कर रहा है, दिस पीपीसी P0 यहाँ पे टच करता है। पहले ये टच करता है पॉइंट N के ऊपर, इसको दिखाया गया है N पॉइंट के ऊपर ये टच कर रहा है, और T कहाँ गया, T इज हियर। यहाँ पे N के ऊपर टच करता है, यहाँ पे आपका दिख रहा है ऊपर जो दिख रहा है वो T के ऊपर दिख रहा है, राइट? हाँ मैम। पहले आपका दिख रहा है T के ऊपर, यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन जो है A1 को कर रही है, टच कर रही है N के ऊपर, और टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन P1 जो है A1B जो आपकी पीपीसी रेखा है वहाँ पे T1 पे टच कर रही है। लेकिन यहाँ पे T जो बताया गया है, दोनों ही देशों में बताया गया है, कंट्रीज के लिए बताया गया है, T जो है आपका प्रोडक्शन लेवल को शो कर, पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है कंट्री बी में, और T1 है पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन इन कंट्री ए में। तो यहाँ पे सेम बात तो दोनों के लिए नहीं कही गई। यहाँ पे टच करने की बात यदि हम, हेलो, यहाँ पे यदि ऊपर देखते हैं तो T पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है फॉर कंट्री बी, एंड कंट्री ए के लिए पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे T1 जो है पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन है। और यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है तो ये दिख रहा है कि यदि ए कंट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है वो N1T1 एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है, N1T1 एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है स्टील का कंट्री ए में, और कंट्री बी के लिए यदि हम बात करते हैं तो T1N जो है एक्सेस प्रोडक्शन होता है, T1N एक्सेस प्रोडक्शन होता है, स्टील का एक्सेस प्रोडक्शन होता है। तो जो एक्सेस प्रोडक्शन होगा बी में, जो एक्सेस प्रोडक्शन होगा वीट का, वो एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा कंट्री ए को, और जो ए में एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है स्टील का, जो एक्सेस प्रोडक्शन होता है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है कंट्री बी को। तो इस प्रकार से N1T1 है एक्सेस प्रोडक्शन है स्टील का इन कंट्री ए, और कंट्री बी में जो है एक्सेस प्रोडक्शन है वीट का TN। और डिमांड की यदि बात करते हैं तो ए देश में जो डिमांड है, वीट की डिमांड है, स्टील की जो डिमांड है कंट्री ए में वो है OQ, और कंट्री स्टील की डिमांड यहाँ पे है S1Q डिमांड है, यहाँ पे स्टील की डिमांड हो रही है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम बात करते हैं बी कंट्री के लिए बात करते हैं तो बी कंट्री में जो डिमांड है स्टील की वो है OQ1, और वीट की जो डिमांड है वो है
SQ1 यहाँ पे ये डिमांड हो रही है। तो जो भी एक्सेस प्रोडक्शन हो रहा है दोनों ही देशों में, वीट के चाहे हो रहा हो या फिर स्टील का प्रोडक्शन हो रहा हो, वो अदर कंट्री को एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। आया समझ में? मैम। Findlay argues that availability approach has superiority over the factor proportions approach. Although two countries have equal endowments of labor and capital, yet country A produces and exports the capital intensive commodity steel, and B produces and exports the relatively less capital intensive commodity wheat. It is not fully consistent with the factor proportions theory. फिंडे ने कहा था कि यद्यपि जो अवेलेबिलिटी थियोरी है इट हैज सम काइंड ऑफ सुपीरियरिटी ओवर द फैक्टर प्रोपोर्शंस अप्रोच या साधन अनुपात सिद्धांत से कुछ मामलों में ये बेटर है। ऑल्दो टू कंट्रीज हैव इक्वल एंडाउमेंट ऑफ, ये जो बात करते हैं दोनों ही देश ए और बी की बात करते हैं, तो दे आर इक्वली एंडाउड इन केस ऑफ लेबर एंड कैपिटल। लेकिन ए में जो प्रोडक्शन होता है वो कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी स्टील का प्रोडक्शन होता है, बी कंट्री में जो प्रोडक्शन होता है वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी वीट का प्रोडक्शन होता है। इट इज़, लेकिन इसलिए पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये फैक्टर प्रोपोर्शन थियरी की तरह ही है, क्योंकि वहाँ पे कहा गया था कि जिस देश में जिस साधन की प्रचुरता होती है वो उसी वस्तु का उत्पादन करता है। लेकिन यहाँ पे पाया गया है कि दोनों देश जो हैं, दोनों ही देशों में ये दोनों साधन जो हैं, चाहे हम लेबर की बात करते हैं कैपिटल की बात करते हैं, दोनों में इक्वली अवेलेबल है। अंतर क्या आ रहा है कि यहाँ पे नेचुरल लैंड की बात की जाती है, एग्रीकल्चर लैंड की बात की जाती है, तो एग्रीकल्चर लैंड बी कंट्री में ज़्यादा अवेलेबल है इन कंपैरिजन टू कंट्री ए। कंट्री ए में एग्रीकल्चर लैंड नहीं होने के कारण कंट्री ए जो है स्टील पे फोकस कर रहा है और कंट्री बी जो है वो वीट के ऊपर फोकस करता है। This theory has also certain limitations, limited applicability. ये भी थियोरी जो है पूरी तरह से लागू हमेशा नहीं होती है। इसकी बात करें लागू होने के लिए तो बहुत ही लिमिटेड लागू होती है। और दूसरी जो इसकी आलोचना की जाती है कि इसमें भी मेथोडोलॉजिकल वीकनेसेस हैं, पूरी तरह से ये रिसर्च बेस्ड नहीं है ये कि कैसा ऐसा ही हुआ हो, ये प्रूव नहीं किया गया। नेग्लेक्ट ऑफ डिमांड पैटर्न, इसमें डिमांड पैटर्न क्या होगा इसके बारे में नहीं बताया गया है। नॉट रेलेवेंट टू ट्रेड एमंग एडवांस कंट्रीज, एडवांस कंट्रीज के बीच में यदि ट्रेड की व्याख्या की जाए या उसको एक्सप्लेन करने में ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। लिमिटेड एम्पिरिकल सपोर्ट,